A child is really very important for all of us. All of you agree? Because we all are teachers. A very good morning to one and all present here. Today we are going to deal with the blossoms of a kindergarten. And generally our teachers nurture a very good thing. Okay, they just look after the kindergarten where we have the birds which are later on converted into flower. So we will be having a very wonderful session by today. One of our faculty who is from kindergarten, Miss Madhu Kumari, and she will be taking you to the world of toddlers and telling you how she deals with the pre-primary. Over to you, ma'am. Good morning, everyone. Today I am going to speak about pre-primary teaching method. Okay. In first slide, you can see so many objects and tools are there. What we use in while teaching our kindergarten classes. Aim of teach. One question I want to ask teacher. I want to ask one question from senior teachers. If you will teach in kindergarten, how you will teach? Anyone give us? Activity based. Activity. And how you will get the attention from them? Because Involving they don't ourselves, want to sit in one ourselves place also. How? We will Involving involve ourselves ourselves. also. How? By dancing, by playing with them. We also have to be a bacha. Yes. Okay, ma'am, please take it. Teachers, I want to ask one question to you all. Is it difficult or easy to teach in kindergarten? It is very difficult, ma'am. What kind of problems you face while teaching in kindergarten? I want to ask from senior teachers. It is not necessary, ma'am, that all the students will follow the teacher at the same time. So this is the main difficulty while teaching the primary children. Yes, Ashwati ma'am will say. बड़े बच्चों को हम लोग कोई भी बोर्ड में लिखा के उनको समझा सकते हैं, वर्बली बोल के उनको कुछ भी करा सकते हैं,
लेकिन छोटे बच्चों को अगर बोर्ड में लिखाएंगे तो वो उस चीज़ को पढ़ नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, उनको समझाना पड़ेगा। और उनको अगर हम कोई भी चीज़ क्रिएटिव माइंड से कराएंगे तो वो करेंगे। तो डिफिकल्ट यहाँ ये है कि छोटे बच्चों को हम लोग को खुद करके बताना पड़ता है, लेकिन बड़े बच्चों को समझाने के लिए उतना हम लोगों को एफर्ट नहीं डालना पड़ता है। लेकिन छोटे बच्चों को समझाने के लिए उसके लेवल में जाके हम लोगों को करना पड़ता है। कोई भी चीज़ के लिए अगर हम ऑब्जेक्ट नहीं लेंगे तो लोग समझ नहीं पाएंगे छोटे बच्चों को। तो बच्चे बन के हम लोगों को पढ़ाना पड़ता है छोटे बच्चों को। Yes, ma'am. I agree with you. One more thing I am sharing you all. In kindergarten sections, students don't want to sit in one place also. Even they don't know how to write. We are kinder teachers. We teach them how to hold the pencil, how to start the alphabet, like make a circle, slanting line, many things, curved line. These are patterns. These are lines we teach when they start how to write alphabet. We face these things. One of the kindergarten teacher I want to ask how you teach the class. How you teach? Any Swastika ma'am or Sarika ma'am? Sarika ma'am. That's it because she teaching Sarika Singh ma'am. Usually we are using playway method. Okay, yes. When we are teaching in a class, we are always try to grab their attention. Okay, when they are not sitting in the bench, they don't want to write. In that time, we are always try to do like कि जो उन लोग को अच्छा लग रहा है हम लोग उसी तरह उसी के अकॉर्डिंग काम करें ताकि उन लोग के लिए वो कंफर्टेबल जोन बन जाए और वो हमारी बात सुने। तो इसी तरह से हम लोग क्लासरूम को एक फ्रेंडली बनाते हैं ताकि वो लोग हम लोग का बात सुने और उसी अकॉर्डिंग वो लोग काम करें। And I am asking about rhymes. When we teach rhyme, how we will teach rhymes? With playway method or action method? Action method. Yes, because it is very easy to teach action method because they are very loud. They will feel very lousy and drowsy. They will feel when we teach normally when we teach rhymes. If we will do the action, they will get enjoy. So we will teach like this. Should teach in playway method. Rhymes or anything when we teach, we should teach in playway method. What am I teaching? Our concept should be clear. What I am teaching to children to get their attention. To get their attention to टीचर क्या पढ़ा रही है क्योंकि वो लोग ना बैठते एक पेज पे है एकदम ना सुनते भी नहीं इवन वो सुनते भी नहीं है वो एक बेंच में इवन वो शेयर भी नहीं करना चाहते हैं एक डेस्क को भी वो शेयर नहीं करना चाहते किसी से आप जितने भी बोलो वो अपने बात में ही बिजी रहते हैं। तो उसके लिए हम लोग को कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर रहना चाहिए कि कैसे इंटेंशन हम लोगों को उसके बच्चों का इंटेंशन टीचर पे कैसे आना चाहिए। जैसे यूजली और सबसे पहली बात जब हम पढ़ाते हैं बच्चों को अल्फाबेट ए पढ़ाते जनरली वी यूज ए सेज एप्पल ए सेज एप और ए फॉर एप्पल। क्यों ए फॉर एप्पल ही क्यों पढ़ाना क्योंकि दे नो हम लोग को ए फॉर एप्पल के इंस्टेड ऑफ ए फॉर एप्पल वी कैन यूज एप्रेन एलिगेटर दीज वर्ड्स वी कैन यूज ना। ए फॉर एप्पल तो बहुत शुरू से चली आ रही है पर उसकी जगह पे हम लोगों को न्यू वर्ड्स करना चाहिए। बोलने के लिए हो जाता है बच्चे नहीं बोल पाएंगे। क्यों नहीं बोल पाएंगे क्योंकि अगर हम उसको अच्छे से ब्रेक के फिर आई एम हैविंग 5 year एक्सपीरियंस इन किंडरगार्टन जहाँ हमारे 3 to 4 5 के बच्चे मतलब 4 years के बच्चे भी बोलते थे एलिगेटर दे लो हाउ टू प्रोनाउंस एलिगेटर एप्रेन एप्रेन कब पहना जाता है इवन ये बोलों को ये भी पता रहता है कि एप्रेन कब पहना जाता है। तो इफ इंस्टेड ऑफ ए फॉर एप्पल वी कैन यूज एलिगेटर एप्रेन एरोप्लेन एप्पल ही क्यों। हमेशा न्यू वर्ड से हम लोगों को बच्चों को आइडेंटिफाई करना चाहिए करवाना चाहिए बच्चों को क्योंकि अब ए फॉर एप्पल वाला गया अब उसके आगे तो और वन मोर थिंग आई वांट टू आस्क सबसे पहले इंग्लिश में ही सबसे इम्पोर्टेंट होती है फोनिक्स की। फोनिक्स वेरी इंपॉर्टेंट होती है तो फोनिक्स किसको आता है पहले एनीबॉडी टीचर्स यस यस आई वांट फोनिक्स
Yes, A says and, B says but. C says curve, D says turn, E says E says and. F says firm, G says curve, S says I says I want you to I. Baby ma'am, I want you to say. You know very well, I know. You can say. A R D ba. C sa D da. Sika. Swastika. And Sarika ma'am, you can say. next person. Okay. How will I teach it? When we use कोई भी टॉपिक्स होता है लाइक बिफोर जनरली बिफोर जब पेरेंट्स भी पढ़ाते हैं ना बच्चों को टीचर अलग पढ़ाती है बच्चे को और पेरेंट्स अलग ही पढ़ाते हैं तो नहीं समझ आता आफ्टर वी यूज कि व्हाट्स कम आफ्टर एंड वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड हियर कि रेडीमेड डोंट गिव द चिल्ड्रन टू रेडीमेड आंसर लाइक क्या व्हाट्स कम आफ्टर 1 1 11 तो आप तो बता ही दे रहे हो ना नंबर्स 1 1 11 लेट देम रीड 1 1 11 वो पढ़ेंगे देन दे विल नो 1 1 11 देन अल्टीमेटली दे विल गिव आंसर विल रेडी तो आप रेडीमेड आंसर डोंट गिव द आंसर 1 1 11 व्हाट्स कम आफ्टर 1 1 11 they know 1 2 3 will come and one more before when we teach before in mathematics I want to show something when we teach before, like I have written 24. What's come before 24? How they will know what's come before 24? First, we should first what number is this? 2. First number is 2. So children will copy first number 2. Then 4. Let's count backward counting from 10 to 0. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, then 3. Then 3. 3 backward. Then like 2 0 20 जनरली जैसे मैं पढ़ाती हूँ जैसे 100 99 90 89 like this we have to teach 90 89 70 69 like only 20 19 like this we have to जैसे 20 अगर करवाना होगा तो फिर 100 से पढ़ना होगा वैसा नहीं हम लोग ऐसे पढ़ा सकते हैं ना 100 99 80 80 89 79 ऐसे करके तो 20 19 like वैसे 42 now children tell me what is the first number 4 so we will write here 4 and the last number is 2 tell me what's come before 2 then they will start backward counting from 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 then they will write 1 this is the way to teach backward counting so before okay who am I teaching ये कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर है क्योंकि बच्चे ये सीनियर क्लास तो है सीनियर क्लास और बच्चों में बहुत ही डिफरेंस है क्योंकि कोई भी टॉपिक हम अगर यूज़ करते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए क्योंकि ये बच्चे जो होते हैं वो कॉन्सेप्ट से तो अलग ही रहते हैं ना सुनना ही नहीं चाहते सबसे बड़ी बात ये सुनना ही नहीं चाहते तो फिर कोई भी चैप्टर अगर हम लोग पढ़ाए तो कैसे उन लोगों को इन्वॉल्व किया जाए इस चैप्टर में वो या तो प्ले बाय मेथड से हम लोग यूज़ कर सकते हैं या स्टोरी टेलिंग से भी जैसे अगर आप बोलेंगे कि मैथ्स में कैसे स्टोरी टेलिंग होगा जैसे लाइक अगर ऐड भी यूज ऐड कैसे पढ़ाएंगे अगर स्टोरी टेलिंग का बात हो रही है तो स्टोरी टेलिंग में जैसे इफ आई विल गिव यू 2 chocolate and I will give you more 2 chocolates so now tell me how many chocolates you have these things जैसे आपके भाई को मैंने 3 चॉकलेट दिया और पापा ने फिर 2 चॉकलेट दी तो फिर कैसे कितने हुए चॉकलेट दिस इज द वे टू टीच ये भी स्टोरी टेलिंग पे ही आता है क्योंकि हम लोग उसको नरेट करते हैं वैसे पढ़ाने के लिए तो मैथ्स में भी हम लोग किंडरगार्टन को नरेट करके हम लोग करवा सकते हैं स्टोरी टेलिंग के जरिए एंड लास्ट
स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड, वो कैसे पता चलेगा कि बच्चे सीख गए हैं, कैसे बच्चे सीखे? तो वो तो एक ही चीज से पता चलेगा, जब आप कुछ भी आप प्ले कर दो या फिर आप स्टार्टिंग करोगे, बच्चे अल्टीमेट वो आंसर दे देंगे। और वो क्यों देंगे आंसर? क्योंकि उन लोगों को पता रहेगा, रीजन बिहाइंड उसके क्या रहेगा कि जब ये टीचर पढ़ा रही थी तो ये एक्शन कर रही थी और टीचर कैसे समझाई थी, वो लोगों को ये पता रहेगा। टीचिंग मेथड इनोवेटिव, इंटरैक्टिव, इवॉल्विंग, एक्सपेरिमेंटल। इनोवेटिव होना चाहिए क्योंकि जो भी चैप्टर्स के लिए इनोवेटिव होना चाहिए। जैसे अगर हम पार्ट ऑफ बॉडीज पढ़ा रहे हैं तो एक बच्चे को लेके, मतलब पूरे स्टूडेंट्स में से कोई भी एक बच्चा आएगा, फिर हाँ वेयर इज योर हैंड, शो मी योर हैंड, व्हाट डू यू डू विथ योर हैंड्स, व्हाट डू यू डू विथ योर लेग्स, ऐसे करके हम लोग सिखा सकते हैं बच्चों को। अगर पार्ट्स ऑफ उससे इन्वॉल्व, सारे बच्चों को इन्वॉल्वमेंट जरूरी होगा उसमें सारे, और वो लोग बोलेंगे कि मेरा नेम कॉल किया गया, इससे हम लोग तब वो इनोवेटिव होगा। एंड द सेकेंड इंटरैक्टिव, बच्चों से बार बार हर बात पे, हर बच्चे का गिवन ये नहीं कि वो क्रैंकी है बच्चा तो उसको नहीं बुलाएंगे, वो बहुत ही नॉटी है तो उसको नहीं बुलाएंगे, वो नहीं, उसको सबको इन्वॉल्वमेंट करेंगे तभी बच्चा सीखने के लिए होगा कि हाँ वो सीखने का मन करेगा कि ये पीरियड में ये पढ़ाया जाए। एंड द लास्ट एक्सपेरिमेंटल, तो वो जो एक्सप्लेन करेंगे कि आप बच्चों को कोई भी वर्ड्स देंगे तो आप बताओ इसमें से क्या क्या, जैसे अगर ए से ही होगा तो एप्रेन, ए से आप बताओ अपने से कौन सा वर्ड ए से क्या और बनेगा, ये सब करके हम मेथड्स को करेंगे। Some of the methods that are applicable to pre-primary school levels of education include play method, supervised method, activity method, demonstration methods, games method, exclusion method, storytelling method, and visual method and assignment method. Demonstration. Play-way method, you know very well कि play-way method कैसे खेल के ही बताना रहता है तो बच्चों को, क्योंकि उसमें इंगेज करना होता है। Demonstration methods होता है कि practical way of teaching in this method, teachers perform an activity to teach the student concept. कॉन्सेप्ट को टीच करने के लिए टीचर को वो चीज़ रोल प्ले करना पड़ता है, चाहे वो किसी भी अगर आप चैप्टर्स ले तो। Play method provides room for children to use their creativity and develop their imaginations. Introduction of action words like walk, swim, fly. In this video, we can learn कि कैसे walk, swim, and fly. These three words they can learn from the action words. We can learn from this video. We can do these kind of things that children can know what is action word. जब तक हम लोग करेंगे नहीं बच्चे सीखेंगे नहीं। Clapping we use, roll we use, clap, roll up, down. When we use up, roll up, and roll down, then these are things in actions word. Fly,
Close your eyes. Okay. Now close your bathroom. Okay. Open please. Open please. Open please. What's there? What's this? What's this? Tell me that. What is this? What is this? What? Yes. Now this is. Okay. Now this is. Okay. What is this? You know what is this? Keep doing interesting things to engage your kids. Okay, like जैसे अगर बोलते हैं ना close your eyes, तो they will know close मतलब क्या होता है. तो close करके हम दिखाएंगे. Clap your hands, clap करके दिया. Clap मतलब क्या होता है? ताली बजाना. They know. Laugh, cry, these things, ये small words we can teach to children to use in daily life. इससे आप पता चलेगा, बच्चे सीखेंगे कि क्लैप, डांसिंग, लाफ, क्राई, these are things we can use in daily classes to know how to interact with them. Self-awareness. We should teach our kids self-awareness. कि उनको हिंदी आत्म जागरूकता से कि उन लोगों को पता है, मतलब हर चीज़ में इंकरेज करना होगा कि आप कर सकते हो. क्योंकि बहुत सारे बच्चे हम लोग फेस करते हैं कि बहुत सारे बच्चे बहुत शाय होते हैं और नॉटी भी होते हैं, जो नहीं सुनना चाहते. जो शाय होते हैं वो करना ही इंगेज, मतलब आता सब है, वो करते नहीं, परफॉर्म नहीं कर पाते. ऐसे वो अच्छा स्कोर करते, सारे करते हैं, पर ऐसे वो बोलना नहीं चाहती. तो हम लोगों को उनको बताना होगा, सेल्फ अवेयरनेस करना कि आप कर सकते हो. यू विल गेट स्टार इफ यू विल से द राइम्स, यू विल गेट गुड. ये सब करके हम उन्हें इंकरेज कर सकते हैं. नेक्स्ट है सेल्फ नॉलेज. ये शुड नो अबाउट देयर, मतलब अपने बारे में उन लोगों को पता रहना चाहिए कि वो लोग कैसे, मतलब क्या है. मतलब आप जैसे बच्चे, छोटे बच्चों में बहुत डिफिकल्टीज होती है कि वो लोग बदमाशी करते हैं, जिन लोगों को पता है. Identify is the third number. Like identify is very important because बच्चे ज़्यादा वो जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को दिखाते हैं, वो पहले नेम नहीं रिकग्नाइज करते हैं. पहले वो ये करते हैं ये कलर कैसा है. वो ऐसे करके किसी भी चीज़ को, लाइक एप्पल ही कर ले तो एप्पल को बोलेंगे कि वो कैसे कलर का है. टेल मी व्हाट इज द कलर ऑफ एप्पल. टेल मी योर ड्रेस. टेल मी व्हाट कलर योर ड्रेस इज यू आर वेयरिंग. ये आइडेंटिफाई, हर चीज़ को वी शुड बच्चों को आइडेंटिफाई कराना चाहिए कि ये चीज़ होती है. हर स्मॉल थिंग्स दैट दे यूज इन डेली लाइफ. टैलेंट्स, ये तो जब बच्चे के एक्टिविटीज़ आप करवाएंगे तब आपको पता चलेगा कौन से बच्चे को राइम्स बोलने, मतलब राइम्स हो या एक्टिविटी गेम्स हो और सिंगिंग, डांसिंग, कुछ भी जो भी हमारी एक्टिविटी स्कूल्स में होती है, उन लोगों को कौन सी एक्टिविटी में ज़्यादा अच्छा लगता है और जिसमें ज़्यादा वो एंजॉय करते हैं. तो इससे हम लोग पता चलेगा कि वो छोटे से, मतलब इन किंडरगार्टन से ही हम लोगों को पता चलता है कि उन लोगों की इंटरेस्ट किस चीज़ में. पोटेंशियल, ये बहुत ही किंडरगार्टन बच्चों में तो बहुत ही कमी रहता है कि पोटेंशियल्स रहते हैं कि हम लोगों को पढ़ाना पड़ता है, हम लोगों को सिखाना पड़ता है कि कैसे. जैसे वो इंटर करते हैं स्कूल में, जब वो क्लास जब स्टार्ट होती है तब पहले तो हम लोगों को टाइम लगता है हम लोगों को समझने में. हम लोगों को लगता है कि बच्चा पहले सबसे फर्स्ट थिंग कि उसे पता रहे कि बैठे एक जगह. सबसे पहले तो जब वो बैठेगा नहीं, सुनेगा नहीं, तो बच्चा सीखेगा कैसे. बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू होल्ड अ पेंसिल ऑल्सो. दे डोंट वांट टू लिसन द टीचर. और वो किसी भी चीज़ को अपने शेयर नहीं करेगा. तो वो मैनर्स, व्हेन वी टीच मैनर्स कि बट वी शुड शेयर आवर टिफिन्स, वी शुड शेयर आवर पेंसिल ऑल्सो विद द फ्रेंड्स, तब वो पोटेंशियल्स, हर चीज़ बात को समझने लगेगा. लाइक ड्रीम्स, वो अभी छोटे बच्चों में ड्रीम्स होता है कि वो कुछ भी बोलते हैं अभी कि मुझे ये करना है, वो करना है. वो कुछ फनिश भी रहते हैं कि मुझे डॉक्टर, ये सब बोलते हैं. तो लोगों को बताना कि आपको अच्छा क्या लगता है, आपको इंटरेस्ट किस चीज़ में. असाइनमेंट्स लाइक इंग्लिश, हिंदी, नंबर वर्क, गेम्स, स्पोर्ट्स, स्टोरी टाइम्स, मोरल
number word learning. English हिंदी number word like English. Just first हम लोग जब सिखाते हैं बच्चों को नंबर लिखना, तो first we have to teach standing line. First we teach standing. Make a standing line. Touch the bottom line. Touch the first line and bottom line. This is the way to teach. When we teach two, half a circle, sleeping line. Two. When we teach three, half a circle, three. When we teach four, standing line, sleeping line, cut the sleeping line, then we teach four. These are the techniques to teach in nursery kids. For जब नंबर हम सिखाते हैं तो ये सब चीज़ को यूज़ करना होता है, तो बहुत ही जल्दी यूज़ करते हैं. मैं यूज़ करती हूँ ये सब टेक्निक्स. तो बच्चे जब वो हाफ अ सर्कल बनाते हैं तो दे बहुत खुश होते हैं कि हाफ सर्कल स्लीपिंग लाइन. बहुत उनको मज़ा आता है फिर नंबर्स लिखने में. तो सबसे पहला जो अल्फ़ाबेट में भी जब लिखते हैं हम लोग, तो मेक अ सर्कल, स्टैंडिंग लाइन. जब स्मॉल अल्फ़ाबेट में हम लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है. स्मॉल अल्फ़ाबेट वो ठीक से नहीं लिख पाते हैं, क्योंकि जनरली वी यूज़ अल्फ़ाबेट ऐसे करके लिखते हैं और दे डोंट नो हाउ टू राइट ए स्मॉल ए. तो वी शुड राइट सर्कल, स्टैंडिंग लाइन, डॉगी स्टेल, ए. दिस इज द टेक्निक टू टीच स्मॉल ए. जब बी सिखाते हैं तो स्टैंडिंग लाइन, हाफ सर्कल, बी, एंड सी हाफ अ सर्कल. ये ऐसे कराते हैं. और जब मुझे ज़्यादातर इंग्लिश और मैथ्स का ही था, क्योंकि मैंने 5 ईयर्स 6 ईयर्स से तो इसी में तो हिंदी मैंने पढ़ाया नहीं था कभी. वो 6 ईयर्स मुझे थे, तो मुझे ये दोनों का ज़्यादा नॉलेज था कि अल्फ़ाबेट, और इसमें ही बच्चे ज़्यादा स्मॉल अल्फ़ाबेट में बहुत बच्चे परेशान होते हैं कि नहीं कर पाते. और जो कैपिटल्स लेटर होते हैं वो आराम से करते हैं. स्लैंटिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन बहुत ईजिली वो लिख लेते हैं. पर जब स्मॉल लेटर्स हम लोग सिखाने जाते हैं तो वो सर्कल्स, इवन दोनों लोग हाउ टू ड्रॉ द सर्कल्स, फिर हम लोगों को सिखाना पड़ता है. इन बिटवीन टू लाइन यू हैव टू ड्रॉ द सर्कल, देन यू विल स्टार्ट राइटिंग सर्कल्स. और ये भी बताना है कि ब्लू लाइन कौन सा है, रेड लाइन कौन सा है, ये बच्चों को बताना होगा. तब बच्चे सर्कल्स, लाइंस के बिटवीन बनाएंगे. अभी भी सब बच्चों की राइटिंग नहीं अच्छी है, पर जब हम किंडरगार्टन से ही आप लोग अल्फ़ाबेट लाइंस में करवाएंगे ना, तभी अच्छा होगा. कि लाइंस सबसे पहली बार जब इंग्लिश बच्चा कर रहा है तो उन लोगों को पता होना चाहिए कौन ब्लू लाइन से है, कौन रेड लाइन से है, और कौन सा टॉप है, कौन सा बॉटम है. जैसे वी शुड गो राइट द मेक अ सर्कल, स्टैंडिंग लाइन, एंड डॉगी स्टेल. डॉगी स्टेल अप नहीं जाना है, डाउन जाना है, ज़्यादा अप नहीं जाना है. दिस इज द वे वी टीच. ऐसे जनरली हम लोग यूज़ करते हैं, सर्कल बनाओ, ऐसे लाइन कर दो, पर वो बच्चा वो अच्छे से नहीं सीख पाता ना. पर उन लोगों को अच्छे से उन लोगों को बताना होगा. सीखता है बच्चा, ये नहीं बोलती हूँ कि नहीं सीखता है, पर सीखता है बच्चा. पर एक अच्छे से टेक्निकली अगर आप बताओ सर्कल, स्टैंडिंग लाइन, डॉगी स्टेल, तो वो ज़्यादा मज़ा भी आता है. जब वो डॉगी स्टेल बनाते हैं, हाउ डॉगी स्टेल्स मतलब टेढ़ा ही होता है डॉगी स्टेल, तो दे नो कि डॉगी स्टेल कैसा होता है, फिर ऐसे करके बनाती है. और गेम्स एंड स्पोर्ट्स लाइक फुटबॉल, ये सब ही नहीं. ऑब्जेक्ट्स वी कैन यूज लाइक हम लोग कुछ भी ऑब्जेक्ट, जैसे रेड ऑब्जेक्ट्स लेके आओ, बहुत सारे बलून्स रख दें, बहुत कलरफुल, तो उसमें से आप गो एंड ब्रिंग रेड बलून्स, तो फिर वो होगा, उससे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कलर ऑल्सो. अगर स्पोर्ट्स खिला रहे बच्चों को तो वैसे ही खिलाएंगे जिससे वो बच्चे को पता चले कि वो उससे सीखे कि अगर इन और आप पर इन कर रहे हैं, कि पहले अगर आप कॉन्सेप्ट होगा इन आउट का, ये इन अंडर और अप का, तो पहले लिखिए बॉक्स के ऊपर वेयर इज द पेन, पेन इज ऑन द बॉक्स. नाउ टेल मी वेयर इज द पेन, पेन इज अंडर द बॉक्स. ऐसे करके इन ऑन अंडर भी हम लोग करवा सकते हैं. जब दीज एंड दैट करवाते हैं तो नियर में कौन है आपके, जैसे नियर में आपकी टीचर है, तो वेयर इज द टीचर, टीचर आपके सामने है, या बॉक्स है, तो दिस एंड दैट, नियर फार का भी हम लोग ऐसे करवा सकते हैं. अपोजिट्स भी करवा सकते हैं. जब उन अपोजिट में टॉल एंड शॉर्ट करते हैं, कि अपने आप को एग्जाम्पल लिया जाए कि हम टॉल हैं और कोई भी बच्चे को बुला लिए तो वो शॉर्ट है. ये सब सीख से, और इससे भी गेम्स में भी उन लोग को मज़ा भी आता है. ये एक्सेप्ट गेम्स अगर खिला रहे हैं तो ये सब भी वो लोग गेम्स को ही लेते हैं, ये सब को भी करते हैं. स्टोरी राइम्स, जब हम लोग स्टोरी पढ़ाते हैं तो बच्चों को स्टोरी पढ़ाते हैं, तो वो जो ऑब्जेक्ट्स आती हैं, जो हम लोग
एक होता है ना जो बच्चों को पपेट्स आते हैं, वो सबसे हम लोग को स्टोरीज बताना होगा कि जिससे वो अगर हम एनिमल्स के ऊपर बता रहे हैं तो उसके भी हम लोग को यूज़ करना चाहिए ऑब्जेक्ट, कि ताकि वो एनिमल्स को भी फाइंड कर पाए। जैसे अगर हम पूछें उनसे कि व्हाट काइंड ऑफ नेक अ जिराफ हैज, तो वो बोले लॉन्ग नेक। एंड विच एनिमल लाइक्स टू ईट कैरेट, तो दे गिव द आंसर रैबिट लाइक्स टू ईट कैरेट। एंड राइम्स, वी शुड टीच राइम्स विद द एक्शन, क्योंकि अगर ऐसे जनरली हम लोग चल जाएंगे तो जाके बोलेंगे कि राइम्स चलो ट्विंकल 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 बाबा ब्लैक शिप, तो वो लोग इंजॉय नहीं कर पाए। कोई बच्चे बोलेंगे, कोई बच्चे नहीं बोलेंगे, तो वो उसके एक्शंस के साथ अगर बोलेंगे ना तो वो ज़्यादा इनोवेटिव होगा। तो मैं चाहूँगी कि कोई एक टीचर एक्शंस के साथ, सीनियर टीचर वसुधा मैम प्लीज़, अगर आप जब भी चीज़ पढ़ाएंगे बाबा ब्लैक शिप, तो आप कैसे पढ़ाएंगे? I can do the twinkle twinkle. May I? Twinkle is very easy one. Okay. Baba Black Sheep. Chubby chicks. Okay. What is the chubby chick rhyme? Chubby cheeks, dimple chin, rosy lips, teeth within, curly hair, very fair, eyes are blue, lovely too. Teacher's pet, is that you? Yes, yes, yes. I'm correct? Yes. Teddy bear. Teddy bear, don't know. Teddy bear. Swastika ma'am. Teddy bear, turn around. Yes. Teddy bear, turn around. Teddy bear, touch the ground. Teddy bear, go to school. Polish your shoes. Teddy bear, off to school. Can I? That means everyone Yes, know ma'am. about the Yes. Okay, thank you. Can I? Yes, ma'am. Please. Okay. Teddy bear, turn around. Teddy bear, touch the ground. Teddy bear, polish your shoes. Teddy bear, off to school. Very nice. Moral values. Next is moral values. मोरल्स वैल्यू जब अभी हम लोग बच्चों को पढ़ाएंगे किंडरगार्टन में, तो वो नहीं समझेंगे ही नहीं और सीखेंगे भी नहीं। मतलब जल्दी ऐसे हम स्टोरीज बताएंगे तो वो नहीं समझेंगे, तो वो एक्शंस के साथ हम लोग स्टोरी के साथ बताएंगे, नहीं समझेंगे तो दिखा के, जैसे अगर किसी बच्चे को हेल्प करना है, अगर ये बताएंगे कि अगर वो पेंसिल नहीं लाया, वो नहीं लिखेगा, तो मतलब आप नहीं हेल्प करोगे उसे। तो ये सब छोटी छोटी बात, अगर वो गिर गया है आप हंसोगे तो ये अच्छी हैबिट है। ऐसे ऐसे करके अगर आप बताएंगे मोरल वैल्यू तो वो बच्चे सीखेंगे। और अगर आप एक स्टोरीज बता देंगे तो वो नहीं सीखने वाले, क्योंकि बहुत छोटे, वो 7-8 के बच्चे तो है नहीं। तो हम लोगों को वैसे ही उनको नरेट करना होगा ताकि वो कुछ सीखे उससे। बेसिक लाइफ स्किल्स। बेसिक लाइफ स्किल्स इसमें आएगा कि बच्चों को सबसे पहले बिहेवियर, पहले इसकी मैनर्स सिखाना, क्योंकि जब बच्चे स्कूल एंटर करते हैं, क्लास में जब एंटर करते हैं, तो सबसे पहले आप लोगों को बोलना होगा कि बच्चे बैठना कैसे है। इवन दे डोंट नो हाउ टू सिट, तो आप बैठ के दिखाएंगे हाउ टू स्पीक, क्योंकि वो जैसे आते हैं देयर वॉइस इज वेरी लाउड, वो चिल्लाते हैं इस क्लास में आके बहुत ज़ोर से। उन लोगों को ये भी नहीं पता है कि वो घर और स्कूल में पहले तो वो डिफरेंस भूल जाते हैं, वो बोलना में भी, और टीचर्स से भी बात वैसे नहीं करते जैसे वो बिहेवियर जैसे सिखाया जाता है, क्योंकि पेरेंट्स जैसे सिखाते हैं वहाँ पर वो हम लोग को भी वैसे ही सोचने लगते हैं। तो वैसे ही हम लोगों को ये भी सिखाना होगा कि पहले कि बिहेवियर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि पहले कि आप कैसे बिहेव करते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, टीचर्स के साथ कैसे बैठना है, तब आप लोग सिर्फ लिखने की पार्ट आती है। फिर आप बच्चों को जब नर्सरी एलकेजी में सिखाया जाता, नर्सरी में इसमें सिखाया जाता है कि पेंसिल कैसे पकड़ा जाता है, वो पहले तो नहीं पकड़ेंगे पेंसिल बिनो, तो फिर उसकी भी टेक्निक्स होती है कि जब बोलती ठीक है मैं लिख रही हूँ, आप यहाँ पकड़ो, होल्ड द पेंसिल, पेंसिल पकड़ने आता है ना आपको, तो ऐसे पकड़ो, वो ऐसे पकड़ते हैं, पहले तो वो ऐसे पकड़ते हैं फिर ऐसे पकड़ते हैं, फिर उनको सिखाया
सिखाया जाता है कि आप पहले यहाँ पकड़िए, टीचर विल होल्ड हियर। तो वो टीचर यहाँ जब पकड़ेंगे ना, आप धीरे धीरे बच्चों को छोड़ने लगेंगे तो वो सीख जाएंगे। ना तो वो बच्चा हमेशा ऐसे ही पकड़ेंगे, ऐसे पकड़ेंगे और ऐसे ही लिखना स्टार्ट करते हैं, तो फिर बहुत ही उस टाइम जो स्किल्स, लिखने की जो स्किल्स होती है लोगों को नहीं आती। रियल वर्ल्ड लर्निंग, रियल वर्ल्ड लर्निंग में होगी कि आप लोगों बच्चों को वो अवेयर करवाना होगा हर चीज़ से कि रियल वर्ल्ड में क्या चल रहा है, मतलब चल रहा है इन द सेंस कि सारी चीज़ से अवेयर कराना होगा कि बच्चे कैसे बोर्ड, मतलब वहाँ अगर आप किसी भी चीज़ से सीखना है बच्चों को, लाइक अगर किसी को हेल्प कर रहे हैं तो वो क्या सीख रहे हैं, हर चीज़ में मोरल वैल्यूज करके ही दिखाना पड़ेगा उन लोगों को स्टोरी या ये सब से नहीं करना पड़ेगा। फ्री स्ट्रक्चर प्ले एंड आर्ट एंड क्राफ्ट। आर्ट एंड क्राफ्ट से बच्चों, पहले तो बच्चा एप्पल्स, जैसे अब पहले हम लोग दे देते बच्चों को कि एप्पल्स ड्रॉ करते या कोई भी फ्रूट्स ड्रॉ करने दे देते हैं उसको, और ये बोलते हैं कि उसको पहले कलर करने, पर वो टेक्निक है ही नहीं बच्चों को कलर करने। जब हम कलर करने देते हैं तो मेक आउटलाइन फर्स्ट, लेट द चाइल्ड टू नो आउटलाइन, व्हाट इज आउटलाइन। आउटलाइन पहले करवाया जाता है, पहले बोला जाता है बच्चे नहीं सीखेंगे आउटलाइन, पर सीखेंगे आउटलाइन, बाहर जाएगा अंदर जाएगा थोड़ा बहुत खराब होगा, पर टेल द चाइल्ड टू आउटलाइन फर्स्ट, फिर वो सीख जाएंगे कि आउटलाइन कैसे करते हैं। देन फिर कलर्स आप छोड़ देते हैं बच्चों को कि करो अपने से, पर ऐसे नहीं टेक्निक्स है कि आप डाउन, फिर वो बोलेंगे कि आप डाउन कर रहे हो तो बोलो भी आप डाउन, तो वो सीखेंगे कि अप का मतलब ऊपर, डाउन का मतलब नीचे। तो ये सब स्किल्स होते हैं, कलर करवाने में भी स्किल है। वो जब ऐसे बोलने में आसान होते हैं कि बच्चे कलरिंग कर रहे हैं, पर उसके लिए भी स्किल्स होते हैं। बच्चों को छोटे में ही समझाया जाता है कि आउटलाइन बनाओ, मेक का आउटलाइन, अप डाउन करो, तो बच्चे सीखते हैं कि आप तब वो फील करना। 3, 5, 6 डेज लगेंगे, फिर वो अपने से बहुत अच्छे कलर करते हैं। पर इवन आप जब आप आउटलाइन ही नहीं करवाओगे ना, तो बच्चे का कलर बाहर ही जाता है, वो बाद तक भी जाता है कि वो अच्छे से प्रॉपरली कलर नहीं कर पाते। वो बड़े हो जाते हैं तब वो सीख जाते हैं, पर जब छोटे से ही आप सिखा दो तो बहुत इजी रहता है उन लोगों के लिए, आर्ट के लिए। और क्राफ्ट की बात है तो वैसा क्राफ्ट करवाएं जिससे बच्चे कर सकें। पेरेंट्स के लिए क्राफ्ट नहीं होना चाहिए, बट क्योंकि उसमें पेरेंट्स बना के दिखा देते हैं, पेरेंट्स इंगेज हो, वैसे क्राफ्ट होना चाहिए जिसमें बच्चे इंगेज हो। जैसे हम लोगों ने भी करवाया, बहुत सारे आर्ट क्राफ्ट करवाए थे जिसमें फिंगर थंब पेंटिंग, बलून पेंटिंग, ये सब बच्चे ने ही किया था, पेरेंट्स का इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं था। बस पेरेंट्स ने सब सामान रख दिए थे, पर सारे बच्चों के ही इन्वॉल्वमेंट था। तो वैसा भी क्राफ्ट करवाना होगा जिसमें पेरेंट्स ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो। डांस एंड म्यूजिक हमेशा, मतलब अगर आप स्टोरी टेलिंग, कलरिंग यही करवाते रहेंगे, दे विल गेट बोर। तो उसके लिए हम लोगों को आर्ट एंड म्यूजिक, क्योंकि बच्चे डांस और म्यूजिक के लिए बहुत एक्सपर्ट है, तो उनको कोई भी गाना बजाओ, इवन वो राइम्स में भी डांस करते हैं, उनको अच्छा लगता है डांस करना। और म्यूजिक में भी वो राइम्स जब इतने अच्छे से गाते हैं, उनको गाना भी, आप कोई भी गाना उनसे गवा लीजिए वो गा लेंगे। जो आप लोगों को नहीं पता होगा उन लोगों को पता होगा। Brain power, communicate, new friends, creativity, healthy body. Children develop skills in 5 main areas of development: physical, social, language, cognitive, emotional. Physical transitions from home to school and from pre-primary to primary. Our home and school. In picture you can see home and school. And translations, object like a storybook or a small toy. Play a game of disappearing. Discussion and games and animations. Quiet training to speak in full sentence, making them aware of their body part. अब प्लीज डिस्कशन एंड गेम्स एंड एनिमेशंस, आप कुछ भी गेम खाना है, बच्चे पहले वो डिस्कस करते हैं, आज टीचर ने ये सिखाया और वो डिस्कस करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में भी बोलते हैं मैम आपने वो क्लास करवाया था ना जिसमें ये गेम था, फिर से आप वही वाला करवाएं। तो वैसा गेम्स की जिससे
वो ऐसा गेम आप करवाएं जिससे बच्चे को सीखने मिले, ताकि वो बार बार करना चाहिए। जैसे अगर हम इन आउट ही करवाते हैं बच्चों को, तो उससे पता चलता है कि इन मतलब क्या होता है, आउट मतलब क्या होता है। क्या आइस, जैसे मैं ऑनलाइन क्लासेस में करवा रही थी फ्रीज एंड आइस, फ्रीज और डांस वाला भी मैंने करवाया था, जिससे उन लोगों को पता है फ्रीज मतलब खड़े रहना है। जब एक्शन स्किल मैं करवाई थी क्लैप, क्लैपिंग, डांसिंग, लाफिंग, ये सब सारे स्किल मैंने करवाया था, जिससे उन लोगों को पता चला कि क्या क्या स्किल्स होते हैं, मतलब डांसिंग मतलब क्या होते हैं, लाफिंग मतलब क्या होते हैं, क्लैप मतलब क्या होते हैं। और टॉयलेट ट्रेनिंग, पहले किंडरगार्टन मतलब नर्सरी एलकेजी में जब बच्चे आते हैं तो वो लोगों को पता ही नहीं रहता कि वॉशरूम में कहाँ यूज़ किया जाए। मैंने हम लोगों ने वही सफ़र किया था कि उन लोगों को नहीं पता था कि कैसे यूज़ किया जाए, वो चाहे गर्ल हो या बॉय हो, उन लोगों को ये भी मतलब क्या फर्स्ट टॉयलेट ट्रेनिंग में कहाँ पर करना है वो भी सिखाया जाना चाहिए। वो जैसे हमारे स्कूल में दीदी लोग ने सिखाया था पहले बच्चों को कि कैसे कहाँ पर करना चाहिए, क्योंकि वो कहीं पे भी करने लगेंगे। और जब वो खाते हैं, मतलब जब वो टिफिन लेते हैं, तो उन लोगों को ये कर सिखाना चाहिए कि वी शुड वॉश द हैंड्स, तब वो टिफिन भी लेंगे। टू स्पीक इन फुल सेंटेंस, जनरली LKG UKG के बच्चे पूरा वर्ड्स नहीं बोल पाते हैं। जैसे बोलेंगे कि यू हैव पेंसिल, तो यस मैम, तो फिर हम लोगों को पूरा सेंटेंस एक बार दो बार कितनी भी प्रैक्टिस करवाएंगे तो वो यस मैम आई हैव 2 पेंसिल, छोटे छोटे वर्ड्स को लेके फिर उन लोगों को फ्रेम करके तब दे नो हाउ टू से। एंड मेकिंग देम अवेयर ऑफ देयर बॉडी पार्ट्स, उन लोगों को अपने बॉडी पार्ट्स के बारे में अवेयर करवाना होगा, क्योंकि वो छोटे लोगों को जनरली पर आई नोज ईयर्स ये पता, पर बाकी सारे जो पार्ट्स होते हैं जो उन लोगों के बारे में भी अवेयर कराना होगा। Purpose, process, result to prepare our children physically, socially, emotionally, and mentally for formal life. The spirit of inquiry and creativity, so exploration is very important for actual learning. Continue stimulate. And so support mental, physical, emotional, language development, adventure for the kids. First experience with a stranger, discipline, and routine gives a sound foundational for a formal structures education in future. Pre-primary school program, personality development, most important part of formal education. Growth and development is faster in early years. जो अर्ली ईयर्स होती है उसमें ग्रोथ बहुत जल्दी होती है, बच्चे को आप जो दिखाएंगे वही सीखता है, वो बहुत जल्दी ऑब्जर्व करता है किसी भी चीज़ को। आप एक म्यूजिक ही आप प्ले कर देंगे तो उन लोगों को पता रहता है इसके बाद क्या होता है, या कार्टून्स ही दिखा देंगे उसमें बहुत जल्दी वो कैच करते हैं। वो एक ऐसे ये जो पीरियड होती है जो बच्चों की बहुत जल्दी हर चीज़ को ऑब्जर्व और कैच, अगर आप कुछ गलत भी बोलोगे ना वही चीज़ को रिपीट करके वो घर पे तुरंत बताता है कि टीचर ने ये बात बोला। तो वैसे ही वर्ड्स हम लोगों को यूज़ करने होंगे ताकि वो बच्चे को गलत इम्पैक्ट ना पड़े जब हम पढ़ाते हैं, तो वो गलत इम्पैक्ट, क्योंकि वो बहुत जल्दी सीखते हैं और बहुत जल्दी वो यूज़ करने लगते हैं वो सब वर्ड्स। Habits and attitude acquired in early childhood are fairly easy. Curiosity and creativity are found highest during this period. हाँ, ये जो फोर्थ टाइम है उसमें वो लोग बच्चों को जो इस एज में बहुत हर चीज़ को वो जानने की कोशिश करते हैं कि मैम ये क्यों हुआ, ये कैसे होता है मैम, मेरे को नहीं आता, कैसे होता है मैम, ये क्या कैसे किया जाता है, ये क्या है। बहुत सारे क्वेश्चन उन लोगों के, एक क्वेश्चन से ज़्यादा दूसरे अलग न्यू क्वेश्चन उन लोगों के रेडी रहते हैं। गेम्स एंड एक्टिविटीज़ आर वेरी इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट, इनमें इन्वॉल्वमेंट भी बच्चों का बहुत ही ज़रूरी है कि उससे वह इंगेज हो और वो एक्टिविटी सीखे, कि वो बहुत सारी एक्टिविटी होती है जो हम लोग यूज़ करते हैं बहुत सारे, इससे वो इंगेज और इंजॉय करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है गेम्स एंड एक्टिविटी होती है। सोशल कॉन्टैक्ट एंड शेयरिंग एंड केयरिंग, मैंने पहले बताया था कि शेयरिंग एंड केयरिंग उन लोगों को सिखाना, क्योंकि वो जब वो इंटर करते क्लास में जब न्यू ही आते हैं तब उन लोगों को अच्छा नहीं लगता अपना थिंग्स को देना, क्योंकि उन लोगों को सिखाया जाता है कि डोंट शेयर योर थिंग्स, किसी को नहीं देना, आपको पेंसिल भी नहीं देना है, क्योंकि अगर भूल गया तो मार पड़ेगी। ये बच्चे डर से फिर नहीं शेयर करते,
पर वही चीज़ आप उन लोगों को सिखानी पड़ती है कि नहीं अभी वो लिख नहीं पा रहा, उसके पास पेंसिल नहीं है, तो आप उसकी हेल्प करोगे ना, फिर वो तो लिख नहीं पाएगा, उसको भी पड़ेगी मार उसकी मम्मी से क्योंकि उसकी पेंसिल भूल गई। टिफिन का अगर टिफिन वो नहीं लेके आया है तो फिर वो भूखे रहेगा ना, तो उसको आप शेयर करोगे, थोड़ा ही बाइट्स दे दो, तो वैसे शेयरिंग एंड केयरिंग सोशल कंटेक्ट। How will finish our syllabus if we do all the activities? Will parents say? एक क्वेश्चन आती है कि अगर हम एक्टिविटीज ही करवाते हैं तो कैसे सिलेबस कैसे कवर होगी? तो एक्टिविटीज वैसे ही होनी चाहिए जिसमें चैप्टर से रिलेटेड हो एक्टिविटीज और जिसको ज़्यादा दिन तक हम लोग उसको नहीं लेके जाए। जैसे आज मैंने बैकवर्ड काउंटिंग सिखाया तो आज उसकी एक्टिविटी सिखाई बैकवर्ड काउंटिंग की, कल तक उसको कवर एक्टिविटी ऐसी होनी चाहिए जिससे आज ही बच्चे सीख जाए। जरूरी नहीं है हर बच्चा सीख जाता है, पर वैसे ही आपको मेथड यूज करना, एक ही दो होंगे जो नहीं सीखेंगे, बाकी है ऐसे कि सीख लेंगे वो, क्योंकि जैसे जैसे एक्टिविटीज होती है बैकवर्ड काउंटिंग एडिशंस बहुत ईजी होती है, वो बच्चे सीख जाएंगे जिससे सिलेबस में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगी। और वैसी एक्टिविटीज ही करानी चाहिए जो सब्जेक्ट्स और सिलेबस के अकॉर्डिंग। We have large strengths, so how many activities will be done? वैसे अगर ज़्यादा स्ट्रेंथ हो गए तो ग्रुप मेकअप ग्रुप, वैसा ग्रुप करके आप जैसे आज कोई चैप्टर लिए, जैसे पार्ट्स ऑफ बॉडी लिए, तो वो ग्रुप बना देंगे और उसी ग्रुप में से आप इंडिविजुअली अगर आप पूछेंगे तो फिर उससे आप उसी से बच्चे सीख जाएंगे और ज़्यादा इसमें स्ट्रेंथ सारे बच्चे का इन्वॉल्वमेंट होगा। ऐसा नहीं होगा कि मुझे नहीं लिया टीचर ने, मुझे नहीं लिया, तो वैसा मेकअप ग्रुप स्मॉल ग्रुप बनेंगे जिसमें इन्वॉल्वमेंट भी हो जाएगी और आपकी एक्टिविटी भी हो जाएगी। एक्टिविटीज आर टाइम कंज्यूमिंग एंड वी रन आउट ऑफ टाइम। ये होती है कि जो एक्टिविटीज जब हम कराते हैं 40 मिनट्स की क्लास में एक्टिविटीज ज़्यादा हो नहीं पाती, तो वैसे हार्डली भी हैव टू टेक 2 days होगी, 2 days लेने चाहिए क्योंकि कोई भी एक्टिविटी, क्योंकि अगर एक 40 स्ट्रेंथ है या 50 स्ट्रेंथ है तो उसमें जल्दी बनाए बच्चों के लिए। और सवाल यह है कि बच्चे उसे पसंद करते हैं कि नहीं, तो कि मैं पसंद करता हूँ, मेरा पसंद करना न करने के कोई माने नहीं है। बच्चे करें तो अच्छा, बच्चे नहीं करें तो निकम्मा है। लेकिन उसमें क्या खास उसका फिल्म का हिस्सा है जो ज्यादा पसंद आया? अच्छा, कद्दू में फंस को चलाता है कि नहीं पसंद है? बात यह है कि बच्चों के फिल्म और मुल्कों में और देशों में अच्छे अच्छे बनने लगे। कितने अच्छा हो मुमकिन है बच्चों के लायक ना बहुत पसंद छूट जाए सो जाए तो देखते इसलिए बच्चों की अलग फिल्म बनानी चाहिए। ये जल्दी ये एक बड़ी पहली कोशिश है बच्चों की फिल्म बनाने की। हम आशा करते हैं उससे भी अच्छे होंगे, लेकिन हमेशा याद रखो बच्चे का फिल्म का इम्तिहान दिया जाता है कि बच्चों को पसंद है कि नहीं, उनसे पूछना कोई मानेगा नहीं। तो है हम इस नतीजे पर पहुंचे ना, बच्चों की फिल्म बनने चाहिए हमारे देश में। और दूसरी बात एक अच्छे फिल्म होने चाहिए, क्योंकि दूसरी गति चीज की पसंद नहीं करते हैं देश में। अब अच्छी आपने पिक्चर में काम किया? हम आप लोगों ने वीडियो देखा, इससे क्या सीखा आप लोगों ने सुना?
आप लोगों ने समझ लिया ना कि क्या है क्या बोला है? कौन थे इसमें? आप लोगों को वो भी पता है कि कौन थे इसमें? अच्छा, एक और क्वेश्चन मेरे पास है कि अगर मेल टीचर्स किंडरगार्टन को कैसे पढ़ाएंगे? We saw in the video. You showed the video. The first video. In our school, in our And she school. want to ask the what they get inspired by that person or not. Yes, ma'am. I want to ask from Subodh sir, are you going to teach kindergarten? You have to show the demo. You have to speak. अभी तो पढ़ाई नहीं, किसी पढ़ाएंगे जैसे ये अगर सिखाना है इसको Sir, will you do demo? ओके लिसन Yes. पहले हम ए इसको अगर सिखा रहे हैं कि हाउ टू राइट ए, इसको 3 पॉइंट इसको देंगे सर। यहाँ एक डॉट देने बोलेंगे, यहाँ एक डॉट देने बोलेंगे, एक बार यहाँ पर स्कूल है ज्वाइन दे In which line? दिस इज स्टार्ट लाइन Join the dots. Slanting line and sleeping line. 2 slanting and 1 sleeping. Then you draw cutting line. ओके दिस लाइन इज ना स्लैंटिंग लाइन, इसको हम इसको भी ज्वाइन कर देंगे, उसको यहाँ पर एक पॉइंट देंगे और यहाँ भी देंगे, इसको इधर Then दोनों you ज्वाइन कर draw sleeping You line. will use the dot method. देंगे। हाँ डॉट How you will teach rhymes? Next. Next one, How you will teach rhymes? ऐसा तो आप डॉट पुट नहीं करेंगे ना? Every time you will not put the dot. Put a full stop every time. How you will teach it without dot? I have no idea मैम। ताली बजाइए। बोलिए। I hope you all enjoy the session. Yes. Thank you, ma'am. So I would like to call Praveen ma'am. So please come on stage and share few lines on today's session. Please, Praveen ma'am. Thank you, Madhu ma'am. It was really very interactive session. All of us deal with the modal skill development, quantitative teaching, experiential teaching. So these are daily needs of a kindergarten, and it was very well versed in your PPT and your presentation. The way you spoke, the things you focused, and the things you used, the skills you used in your tools used in your teaching was very well explained. And it was also a learning session for all the senior teachers, and a very interactive session once again, and a wonderful session. Thank you once again. Thank you, ma'am. Thank you, everyone.